मैं कर लूँ। जी बेटा, कर लीजिए। जी मैम। आई वुड अप्रिशिएट अगर कोई पहले से कमिट ना भी किया हो, लेकिन फिर भी अगर वो वॉलंटियर कर ले तो। जी मैम। ठीक है, आप हैं कोमल? जी मैडम। जी, डॉक्टर कोमल। जी। जी आ, बेटा, कोई सिनेरियो, एनी सिनेरियो विच यू वांट टू डिस्कस। आ, हम्म, मैम बस जल्दी से बना लेंगे कि। हाँ, मैम इन। हाँ, खुद से ही बेशक बनाओ, ना भी अगर कभी देखा हो तो। यस मैम। मैम primary gravida who is हाँ 34 weeks pregnant हाँ। and she's a school teacher and she's here as she contacted uh, one of her student. देखो, इसमें जो कॉन्टेक्ट है ना, अब इसमें डिफरेंट आप सिनेरियो डेफिनेटली क्रिएट कर सकते हो। अर्ली ट्राइमेस्टर का भी कर सकते हो, मिड का भी, एंड द लेट का भी। Yes और ma'am. ये दूसरी चीज ये कि एक्सपोजर उसके अपने बच्चे किसी का भी हो सकता है। अगर वो, ये प्राइमरी का तो जाहिर नहीं है, लेकिन कोई किसी घर में वो गेस्ट हो या गेस्ट आए हो, उनसे साथ एक्सपोजर हो सकता है। स्कूल Yes. टीचर का यूजुअली विद द स्कूल चिल्ड्रन होता है। Yes ma'am. तो उसमें कोई भी हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर हम कह सकते हैं कि स्कूल में एक बच्चे को था और उसके साथ एक्सपोजर हो गया और अब वो कंसर्न्ड है, ये सारा कुछ, ये दिस विल मेक अप योर सिंपलेस्ट सिनेरियो। ठीक है, Yes तो ma'am. उसमें जो भी चीज आप डिस्कस करना चाहते हैं उसके हिसाब से सिनेरियो डेवलप कर लिया जाता। जी मैम। अच्छा, 34 वीक्स पे है, प्राइमी ग्रेविडा है और उसका हिस्ट्री ऑफ कॉन्टेक्ट है। Yes ma'am. ऐसे ही है ना? Yes ma'am. Yes ma'am. ठीक Yes. है। ठीक है। तो चले अब इसको जरा हम डिस्कस करते हैं। हम्म, Now this patient has come to you and she is much worried about the effect of this because she has contacted this affected child. And now she is worried about because she has heard that this is a viral infection and a communicable infection and can affect the pregnant mothers. So yes. she is worried to know about the facts. या उसमें ये स्ट्रक्चर डिस्कशन भी हो सकती है, काउंसलिंग भी हो सकती है। तो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में स्ट्रक्चर डिस्कशन करते हैं, क्योंकि काउंसलिंग के लिए यू विल बी नीडिंग अ पार्टनर। Yes ma'am. तो इसमें कैसे हम शुरू करेंगे? Ma'am, first of all, I will greet the patient. I will introduce myself. I will हाँ, ask her introduction. I will ask her ये name. आप काउंसलिंग का के वो बता रहे हो, ठीक है? Yes, ma'am. Ma'am, I will ask her name, her age, her हम्म educational status, as it is already given that she is a school teacher, and then हम्म we will ask her about that why she is here. I will ask her about her concerns. I will हम्म ask her about that was the child was having fever, हम्म at which stage was the child in was he having rash and हम्म vesicles, maculopapular rash, हम्म and was he running fever, and हम्म any treatment the child has took for this disease. And हम्म then I will ask her that before this pregnancy, was she हम्म had any fever or हम्म any rash or any history of contact or any rash previous history in ठीक है। child in childhood or हम्म pregnancy. हम्म Moreover, I will ask her about how she conceived this pregnancy, हम्म whether it was spontaneous or planned, spontaneous हम्म or conceived with medication, whether it was हम्म planned or unplanned, was any booking visit done, any हम्म investigation done, any dating any dating any dating scan done, and any history of folic acid taken. Moreover, हम्म any history of iron intake and any congenital ultrasound, any congenital ultrasound done, and is the pregnancy going up to the mark till हम्म now, the fetal movements, and any other any other things हम्म he wants to discuss with me. Any past medical history, any past surgical history, any family history of diabetes, hypertension, or any other history
or any history of contagious diseases, skin diseases, or any other. And Hmm. then I will ask her about her BMI of the patient, the weight and height of the patient. Uh, Okay, that comes up to the examination. First, we should discuss the history. yes, yes, ma'am. ठीक है, अभी हिस्ट्री में इनके जो पॉइंट्स थे आप सब लोगों ने सुनी होगी, तो एनीथिंग एनीवन वांट्स टू ऐड टू इट? मैडम इसमें प्रीवियस हिस्ट्री आप चिकन पॉक्स का पूछना था पेशेंट की कि उसको हुआ है या नहीं हुआ, और ये था कि उसकी टाइमिंग्स ड्यूरेशन कितना था जिसमें उसको एक्सपोजर हुआ है। हम्म। और मैडम दूसरा ये कि बेसिकली बेबी यस, हाँ ठीक है। बच्चे को जो है वो रैश थे या नहीं, और बच्चे से कितनी देर का राब्ता हुआ, हम्म। और पेशेंट को अभी कोई रैश, कोई सिम्टम, कोई फीवर, कोई अभी कोई है सिम्टम या नहीं हम्म। पेशेंट को, और हम्म। इससे पहले पेशेंट को इस तरह के रैश, जिस तरह के बच्चे को हैं, इस तरह के हम्म। रैश कभी हुए हैं या नहीं हुए हैं। और हम्म। दूसरा ये भी कि पेशेंट कोई ऐसी इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स तो नहीं ले रही, या कोई ऐसी पेशेंट को पहले से कोई इलनेस तो नहीं है, क्योंकि वो और हम्म। ज्यादा जैसे हेपेटाइटिस हो या HIV हो या कोई शुगर की मेडिसिन या स्टीरॉइड्स जो हम्म। कुव्वत मुदाफियत को, उसकी मतलब इम्यूनिटी को कम कर दे। ओके, ठीक है। मैडम वैक्सीनेशन का भी पूछना है कि इसको पहले वैक्सीनेशन हुई है या नहीं, और दूसरा ये कि उसकी टाइमिंग्स कितनी थी जिसको एक्सपोजर इतना हुआ था, मतलब कितनी हम्म। ड्यूरेशन के लिए हुआ था। ठीक है, बेसिकली जो पेशेंट को जो हमने काउंसलिंग, चाहे ये काउंसलिंग हो चाहे स्ट्रक्चर डिस्कशन हो, उसमें इस चीज पे कमेंट करने के लिए कि इन्फेक्शन के चांसेस हैं या नहीं है, दैट डिपेंड्स अपॉन द डिटेल्स ऑफ एक्सपोजर। यानी उसमें हमने सिग्निफिकेंट एक्सपोजर की डिटेल पूछनी है, एंड मोर ओवर जब बच्चा किस स्टेज में था, वायरीमिया वाली स्टेज में था, वो हमें क्लिनिकल मार्कर से पता चल जाता है। एंड थर्डली वी हैव टू आस्क अबाउट द कोमॉर्बिडिटीज विच आर कंसिडर्ड टू बी द एडिशनल रिस्क फैक्टर्स, जिसमें कि इम्यूनोसप्रेशन हो जाती है और उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो ये इन तीन चीजों के बारे में जो डिटेल है वो पूछनी बहुत जरूरी है। वी नो द जेस्टेशनल टाइम पीरियड। अब इसमें कितने टाइम के लिए एक्सपोजर हुआ, कितने दिन पहले हुआ, उस एक्सपोजर का जो है वो बेसिकली कहाँ पे, किस स्पेस में, किसी ओपन स्पेस में, किसी क्लोज्ड स्पेस में, वॉज इट फेस टू फेस कांटेक्ट, और यहाँ जैसे एक पेशेंट एक कमरे में है, दूसरे कमरे में वो बच्चा है, तो वो वाली चीज। अब सिग्निफिकेंट एक्सपोजर हम कहते हैं जब एक इन द सेम सिटिंग मोर देन 15 मिनट्स अगर एक्सपोजर हो जाए तो वो दैट इज कंसिडर्ड टू बी द सिग्निफिकेंट एक्सपोजर, या फेस टू फेस हो। यूजुअली अ बेबी हु इज इन द पीक ऑफ द इन्फेक्टिव फेज इज बीइंग आइसोलेटेड, वो इस तरह से मिक्सअप नहीं होता। लेकिन जब तक उसके क्रस्ट रिमूव नहीं हो जाते रैशेस के, या उसको उसको हमें ये देखना पड़ेगा कि उस दिन जिस दिन उसका एक्सपोजर हुआ उससे कितने दिन पहले उसको रैश डेवलप हुआ, तो उससे भी उसकी इन्फेक्टिविटी फेज जो है वो हमें पता चल जाता है। अब पेशेंट का एक अपना जो है जो अपना हेल्थ स्टेटस है, दैट नीड्स टू बी कंसिडर्ड। वी शुड नो द एज ऑफ पेशेंट बिकॉज ओल्ड एज पोजेस एन एडिशनल रिस्क फैक्टर। कोमॉर्बिडिटीज इन्होंने काफी सारी बता दी जो कि ठीक है, इसमें कोई भी डिसऑर्डर होगा, डायबिटीज है, कोई रीनल डिजीज है, इन्फेक्शंस हैं, या कोई इसमें एडिशनल कार्डियक प्रॉब्लम है, हर चीज जो है उसमें एक एडिशनल उसका भी रिस्क फैक्टर हो जाएगा। इवन द स्ट्रेस ऑफ द पेशेंट, पेशेंट का जो अनड्यू स्ट्रेस है दैट डज अफेक्ट द इम्यून रिस्पॉन्सिवनेस, इम्यून सिस्टम को वो इफेक्ट करता है। तो ये हैं जो सारी चीजें हमने हिस्ट्री पे इन डिटेल पूछनी होंगी, क्योंकि तभी हम उसकी उसकी पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग इन्फेक्टेड पे कुछ कमेंट दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही चलते चलते फर्ज किया जस्ट फॉर अ मोमेंट पेशेंट जो है उसका एक्सपोजर हुआ और उसने टच भी नहीं किया, कुछ नहीं है, ज़्यादा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से भी हो सकता है, तो उसमें उसके इन्फेक्ट होने के चांसेस बहुत कम हैं। तो ये सारा कुछ है जो हमने पूछना है। अब इसके बाद देन कम्स, मतलब वो सारी बाकी जो रूटीन की फैमिली हिस्ट्री एंड ऑल अदर वो सब चीज़ें ठीक है, वो हमने करना होता है। और वैक्सीनेशन यूजुअली नहीं होती,
एडल्ट्स की वैक्सीनेशन यूजुअली हम नहीं करते, लेकिन उसमें सीरो पॉजिटिविटी हो सकती है, क्योंकि चिकन पॉक्स इतना भी बहुत अनकॉमन नहीं है, और सीरो पॉजिटिविटी जो है वो तकरीबन 50% से भी ऊपर चली जाती है, 50 to 60% तक होती है, ड्यू टू एनी टाइम एक्सपोजर, बीइंग इन द चाइल्डहुड, प्रायर टू द प्रेगनेंसी। ये सब चीज़ें हैं जो होती हैं। अगर पेशेंट को याद हो तो ठीक है, ना याद हो तो भी उसको चाइल्डहुड अगर है तो वो अमूमन ऐसी चीज़ें याद नहीं रहती। वो पेशेंट के पेरेंट्स बता सकते हैं कि कभी हुआ था या नहीं हुआ था। तो अब देन वी मूव ऑन टू द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन पे हम क्या, हमारा क्या होगा एग्जामिनेशन जो है डिटेल्स वो क्या होंगी? Ma'am, देखो मैम। yes, ma'am. हाँ। Examination pay, we will check the general look of the patient, and हाँ। BMI of the patient, height and weight, blood pressure, pulse, temperature, then हाँ। any pallor, and normal thyroid examination, any palpable lymph nodes, हाँ। and a normal breast examination, any fever or any rash हाँ। it developed, then हाँ। check for it. And then I will come towards the per abdominal examination, in which I will inspect. ओके, एक एक चीज बेटा जो इसकी हिस्ट्री में भी, सॉरी टू डिस्टर्ब जो, Yes, ma'am. इसमें जो है, इसमें जो हिस्ट्री से रिलेटेड एक और चीज जो आप पूछोगे वो ये, सपोज अगर पेशेंट की हिस्ट्री में वो बताती है कि जिस वक्त जो है वो हुआ, एक्सपोजर हुआ, उस वक्त तक बच्चे को कुछ नहीं था, लेकिन 2 दिन बाद पता चला कि उसको रैश डेवलप हो गया। सो Mm. एट द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट द बेबी वॉज नॉट हैविंग रैश, क्योंकि रैश वाला बच्चा अमूमन स्कूल में नहीं भेजा जाता, लेकिन Yes, ma'am. 2 दिन के बाद उसको रैश डेवलप हो गया। तो उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्योंकि जिस वक्त उसका कांटेक्ट हुआ उससे पहले तो उसको रैश नहीं था, उस वक्त तो उसको रैश नहीं था। या अगर फर्ज किया कोई घर पे भी बच्चा आया तो उस वक्त तो ठीक था, अगर जो उसको थोड़ा सा लो ग्रेड फीवर हुआ और बस, उसके अलावा तो और कुछ नहीं, जो अमूमन यूजुअली जो रूटीन का वो हो सकता है, सीजनल भी हो सकता है। सो नो बडी बॉदर्ड अबाउट दैट फीवर, फ्लू था, फीवर था, लेकिन अदरवाइज रैश कोई नहीं था। बट 2 days आफ्टरवर्ड द रैश डेवलप्ड। Ma'am, so it is. डॉक्टर ने डायग्नोज किया कि ये चिकन पॉक्स है, तो उस वक्त उसकी सिग्निफिकेंस क्या होगी? बिकॉज द पेशेंट हैज कम टू यू आफ्टर 3 days, बिकॉज नाउ शी नोज कि जिस बच्चे से वो मिली उसको तो अब चिकन पॉक्स हो गया। Yes, ma'am. Ma'am, it was in an infectious period. Ma'am, 48 hours में तो मैडम वो बहुत ज्यादा मैम वो होता है. यानी प्रायर टू रैश भी जो है Yes, वो उसका इन्फेक्टिविटी फेज शुरू होगा। yes, ma'am. सो शी कॉन्टेक्टेड दैट चाइल्ड इन Yes, इन्फेक्टिव फेज, तो yes, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। अगर फर्ज किया उसको हफ्ते बाद हुआ तो फिर हम उसको रीअश्योर कर देंगे कि कोई ऐसा मसला नहीं है। yes, ma'am. ठीक है, तो ये Yes, ma'am. उसमें बात मैं ऐड करना चाह रही थी कि ये इस तरह से सिनेरियो भी हो सकता है कि उस वक्त रैश ना हो और उसके बाद उसको रैश हो जाए, तो फिर मरीज को जो है वो कंसर्न होता है। चलें जी, लेट्स मूव ऑन टू एग्जामिनेशन। Yes, ma'am. Ma'am, in examination, I will inspect the per abdominal examination for any scars, any for any striga epiderm, any stretch marks, any other scars, and I will palpate for the symphysis fundal height, for the live presentation, and estimated fetal weight, and Riker, and mm, I will do the per vaginal examination if needed, and विजाइनल क्यों? पेशेंट को तो कोई पेन्स नहीं है, कुछ नहीं है, आपने ऐसा कुछ नहीं बताया हमें उसने। yes, जस्ट रूटीन एंटीनेटल उसका था, लेकिन वो स्पेशली इसलिए पहले आ गई कि उसको इसके बारे में कंसर्न थे। yes, तो वेजाइनल एग्जामिनेशन इफ नीडेड के मतलब उसको रूटीन में डालें ना, क्योंकि उसकी उसकी बड़ी स्पेशल इंडिकेशंस होती हैं कि या तो कोई बहुत ज्यादा डिस्चार्ज हो रहा हो या कुछ और ऐसा, या लेबर में हो, तो तब है, वरना हम रूटीन में तो नहीं करते ना। yes, ma'am. Yeah, हम्म। ma'am, and then I will come towards the investigation, which includes the CBC with date and time, H platelets and TLC count, and viral serology, HIV, hepatitis B surface antigen, and hepatitis C virus. And I will ask for the OGTT and 34 वीक्स पे OGTT।
मैडम 34 वीक्स था। मैं वही कह रही हूँ ना, 34 वीक्स पे आप ओजीटीटी कराओगे? नो मैडम। कोई मैडम ऐसी हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है? मैडम RBS करवाएंगे। ठीक है, चले। And then I will move toward the specific investigations in which I do the IgM and IgG. ठीक है। Yes, ma'am. अभी पेशेंट एसिम्टोमेटिक है, तो उसमें क्या आप एक्सपेक्ट करते हो कि आईजीएम पॉजिटिव होगा और आईजीजी? व्हाई वी आर डूइंग दिस सीरोलॉजी? हम ये क्यों करा रहे हैं आईजीजी एंड आईजीएम एंड आईजीजी? मैम ताकि मैम अगर मैम IgG हमारे पास जो है मैडम, वो हमारे पास अगर पॉजिटिव होगा, वो मैम जो है ना, वो हमारे पास पास्ट इन्फेक्शन को मैम वो जो है मैम वो शो करेगा। So she is already seropositive. In case she is IgM negative and IgG positive. ठीक है। अब Yes, ma'am. ये हो सकता है, अब ये हमारे पास आई है, इन्फेक्टिव फेज में उसका कांटेक्ट हुआ और उसके बाद ये हमारे पास आई। अब उसको अभी तक एसिम्टोमेटिक है, फीवर फ्लू वगैरह कुछ नहीं है, रैश वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन उसका कंसर्न है टू नो, एंड एज शी हैज अ सिग्निफिकेंट एक्सपोजर, ठीक है, वी कैन एज्यूम दैट दैट वाज अ सिग्निफिकेंट एक्सपोजर उस फेज में, जबकि बच्चे को अभी रैश नहीं थे। तो इसमें हम ये सोच सकते हैं कि वायरस ट्रांसमिशन हो गई होगी। वायरस Yes. वैसे इसका होता कौन सा है? Mm. टू विच क्लास इट बिलोंग्स, जो ये वाला वायरस है? मैडम herpes zoster virus. हाँ, हर्पीज जोस्टर, यानी ये हर्पीस की क्लास से है। Yes, ma'am. लेकिन हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस की उस तरह से उससे फर्क है। अब इसमें अब हमने ये देखना है कि एक्सपोजर तो हो गया, लेकिन उसने वायरस जो कैच किया है वो जाहिर है इतनी जल्दी, अगर फर्ज किया 2 दिन पहले भी उसको वायरस हुआ, तो क्या इसमें एंटीबॉडीज बन जाएंगे? मैम इतने जल्दी तो नहीं बनेंगे, लेकिन नहीं मैडम इसमें बनेंगे। यस So मैडम। IgM probably will be negative and IgG will be positive, and that will denote the past immunity. So यस मैम। is there anything, any need to worry in this case जिसमें IgG positive है और IgM negative है? मैम देन वी विल मैम सजेस्ट गिव मैडम immunoglobulins varicella नहीं zoster। नहीं, एक मिनट। यस मैम। IgG पॉजिटिव था लेकिन IgM नेगेटिव है। इस केस में हमारी, एक मिनट बेटा, मैं जरा फोन से, हेलो। जी, तो हम इस पे थे कि अब हमने आईजीजी पॉजिटिव हो गया, आईजीएम नेगेटिव हो गया, व्हाट शुड बी आवर लाइन ऑफ एक्शन नाउ इन दिस पेशेंट, क्योंकि हमने उसको एडवाइस कर दिया, सारे टेस्ट हमने करवा लिए और वो सारे के सारे ठीक हैं, आईजीजी पॉजिटिव आ गया और आईजीएम नेगेटिव आ गया। अब हम उस मरीज को क्या बताएंगे या क्या करेंगे? मैम मैम हम क्योंकि आपने मुझे बताया है कि ये पास्ट जी मैम। इम्यूनिटी है, विच इज ट्रू। यस ठीक मैम। है, ये पास्ट इम्यूनिटी है, इसका मतलब है पेशेंट इज ऑलरेडी इम्यूनाइज्ड। अब उसका एक्सपोजर हो गया टू अ वायरस, जो यस मैम। कि अभी हमें नहीं पता कि इस नया वायरस जो है वो क्या करेगा, लेकिन यस उस वायरस के अगेंस्ट तो एंटीबॉडीज पहले से मौजूद हैं उसकी बॉडी में। मैम। यस मैम। फिर अब हम क्या करेंगे? मैडम ये मैम डिपेंड करता है ना कि कितनी एंटीबॉडीज, अगर लेस देन 100 है तो फिर तो हमने एक्शन लेना है, लेकिन अगर मोर देन 100 है तो फिर हम पेशेंट को रीअश्योर करवाएंगे ना। यस, दिस इज ट्रू। यस यानी एक तो या तो नेगेटिव हो
आईजीजी, ये अब हम नेगेटिव के सिनेरियो पे आ जाएंगे। लेकिन अगर आईजीजी पॉजिटिव है और लेस देन 100 है तो फिर हमारा लाइन ऑफ एक्शन कुछ और होगा। और Okay. अगर ये एंटीबॉडीज जो हैं ये पॉजिटिव हैं और लेकिन मोर देन 100 हैं तो हमारी लाइन ऑफ एक्शन कुछ और होगी। इसका मतलब है मोर देन 100 का मतलब ये मिली इंटरनेशनल यूनिट पर मिलीलीटर। इसका मतलब ये है कि उसमें इतनी इम्यूनिटी है कि वो इस नए एंटर होने वाले वायरस को कर देगा, मैनेज कर लेगा। वो एंटीबॉडीज उस नए एंटर होने वाले एंटीजेंस को न्यूट्रलाइज कर लेगी, इतनी एंटीबॉडीज हैं उसमें। लेकिन अगर लेस देन 100 है, ये क्राइटेरिया स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है इसमें कि अगर ये लेस देन 100 है तो फिर वो इतनी काफी नहीं है कि एंटर होने वाले वायरस को कुछ मैनेज कर सके। तो इसलिए अब फर्ज किया ये इसमें 100 थी तो आपने रीअश्योर कर दिया। बट इफ इट टर्न्स आउट टू बी नेगेटिव या नेगेटिव के साथ दूसरी चीज मिला लो कि लेस देन 100, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे? मैम इम्यूनोग्लोबुलिन्स देंगे। हम्म, कब? हाँ। 3 दिन गुजर गए उसके कॉन्ट्रैक्ट को, कब देंगे? मैडम 10 डेज के अंदर अंदर देते हैं। Okay. ठीक है। और पहले मैडम इसमें एसाइक्लोविर नहीं देते 7 to 14 डेज के लिए, अगर वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है तो तब इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं इसको विद इन नहीं, 24 आवर्स में अगर आ जाती इसमें है। अब इस वक्त हम एक्टिव डिजीज की बात नहीं कर रहे। इस वक्त हम उस सिनेरियो की बात कर रहे हैं जिसमें भी एक्टिव डिजीज नहीं हुई, यानी उसमें रैश डेवलप नहीं हुआ। मैडम ये सही Rather, कह रही है, अब न्यू गाइडलाइन के हिसाब से यही आया है कि एंटीबॉडी लेस देन 100 होना तो आप मेडिसिन भी दे सकते हैं, अगर वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो तब एंटीबॉडी देनी है। ठीक है, इसमें बेसिकली लेस देन 100 हो तो और उसमें कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कोई एडिशनल रिस्क फैक्टर नहीं है, इवन देन यू कैन वेट। अब लेस देन 100 इज कंसिडर्ड टू बी वेरी इनफेक्टिव टू मैनेज टू मैनेज द जो है ये इसका न्यू ऑनसेट जो डिजीज है, वायरल डिजीज है। और 100 से ऊपर तो इफेक्टिव है, लेकिन अगर लेस देन 100 है और या नेगेटिव है तो फिर आप क्या उसको एंटीवायरल दोगे राइट नाउ? प्रोफाइलैक्सिस की अभी हम बात कर रहे हैं, नॉट ट्रीटमेंट की। यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन दिस टू कि प्रोफाइलैक्सिस तब हमने देना है जब कांटेक्ट हुआ लेकिन डिजीज नहीं हुई, और उस पे हम गए फिर एंटीबॉडी डिटेक्शन पे। एंटीबॉडी डिटेक्शन इधर इज नेगेटिव या बहुत कम, तो ऐसी सूरत में हमने क्या करना है? उसमें रोल ऑफ एंटीवायरल राइट नाउ अभी क्या होगा जी? मैडम लेस देन 10 डेज ड्यूरेशन में अगर वो आती है, अगर आफ्टर 10 डेज के हम्म, बाद आएगी तब हम एसाइक्लोविर देते हैं। अगर वो अभी आती है तो इसमें तो फिर इम्यूनोग्लोबुलिन की तरफ जाएंगे अगर यस, दिस इज 7 डेज। ट्रू। देखो, अगर तो नेगेटिव आ गया ना तो जो एंटीवायरल यानी हमने जो वायरस, अगर वायरस को हम फौरी तौर पे खत्म कर देते हैं, उसका नुकसान क्या होगा? अगर हम एंटीवायरल भी देना शुरू कर दें, यानी उसमें हमें पता चल गया कि इसमें इम्यूनिटी नहीं है, ये जो वायरस आ गया है ये इसको इन्फेक्ट कर सकता है, तो उसमें हमने उसका कुछ तो सद्देबाप करना है। अब वो सद्देबाप करने के 2 तरीके हैं कि या तो आप एंटीवायरल दो, यानी जो वायरस एंटर हुआ है उसको वहीं के वहीं खत्म कर दो, या फिर उस वायरस से लड़ने के लिए आप इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंटीबॉडीज उसको दे दो। विच ऑप्शन विल बी बेटर नाउ आफ्टर 3 days आफ्टर द कॉन्टेक्ट among these two? मैडम इम्यूनोग्लोबुलिन। Why? मैडम क्योंकि 7 डेज के बाद हम एंटीवायरल थेरेपी देते हैं, यस, और दूसरा इसमें ये एंटीवायरल हम नहीं देते फौरी के फौरी, वो सिर्फ वो उस वक्त देते हैं जब उसको रैश डेवलप हो जाए, यानी जब वो इन्फेक्शन हो जाए फिर वहां पे इम्यूनोग्लोबुलिन्स का कोई रोल नहीं रहता, वहां पे एंटीवायरल्स का ही प्राइमरी रोल आता है, और उसको हम फिर वहीं के वहीं विद इन 24 आवर्स, विद इन फ्यू आवर्स हम शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर उसको इन्फेक्टिव डिजीज नहीं हुई, उसको प्रॉपर रैश वगैरह कुछ नहीं डेवलप हुआ, देन यू हैव टू गो फॉर पैसिव इम्यूनाइजेशन, यानी आप उसको जो है वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स दोगे। और ये तकरीबन एक डीप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होता है जो तकरीबन आप जो है वो 1 ग्राम के करीब आप देते हो डीप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में तो केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से हम
उसको डोज कैलकुलेट करके देते हैं जहाँ पे ज्यादा एडिशनल रिस्क फैक्टर हैं या उसमें डिजीज स्वेरिटी के ज्यादा चांसेस होते हैं, और इफ देयर इज सम को इन्फेक्शन लाइक HIV, तो वहां पे भी डोज कैलकुलेशन बढ़ जाती है, जो कि हम हर वायरल इन्फेक्शन के साथ इसकी बात करते भी हैं। तो जस्ट रिमेंबर दैट फॉर प्रोफाइलैक्सिस जो सीरो नेगेटिव मदर्स हैं उनको हमने इम्यूनोग्लोबुलिन से मैनेज करना है, सीरो नेगेटिव को, जिनमें कोई इम्यूनिटी पहले से नहीं है। और जो सीरो पॉजिटिव हैं उसमें हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी इम्यूनाइज्ड हैं, उसमें इम्यूनोग्लोबिन डालने का फायदा कुछ नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी हैं, उसके अंदर है। और इसके अलावा अब ये डिपेंड करता है कि कितने, क्योंकि उसमें जो बेबी है और जो मदर है उनका कितना स्वेरिटी ऑफ इन्फेक्शन के चांसेस कितने हैं, कोई को एक्सिस्टेंट रिस्क फैक्टर हैं या नहीं है। फिर उसमें एंटीवायरल हम स्टार्ट करते हैं 7 डेज के बाद। क्यों? वाई नॉट अर्लीस्ट? हमें अगर पता है कि इसमें वायरस अब चला गया है और उस वायरस ने इसको इन्फेक्शन करना ही है, तो हम एंटीवायरल उसको सबसे पहले क्यों नहीं शुरू कर देते? मैम ताकि वो खुद भी बॉडी में मैम एंटीबॉडीज तो बन जाए ना यस, गुड। नेक्स्ट टाइम। क्योंकि उसने एंटीबॉडीज बनाने के लिए हमें उसको हफ्ते का एक टाइम देना पड़ेगा। अब अगर इन्फेक्शन हो ही गया है, उसको वायरल इन्फेक्शन हो गया है, तो हम उसको इतना टाइम देंगे कि उसकी बॉडी अपनी बनाना शुरू कर दे। जी मैम। तो इम्यूनोग्लोबुलिन हम तब देते हैं जहां पे सेवेरिटी ऑफ इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हों। ठीक है, ठीक है यानी मैम। टोटली नेगेटिव है ठीक और है मैम। उसमें रिस्क फैक्टर है। तो लेकिन एक हफ्ते का टाइम हम देंगे ताकि उसमें एंटीबॉडीज बन जाएं, और ये फिर एंटीबॉडीज बच्चे में ट्रांसमिट होते हैं, सपोज उसमें दोबारा से रिकरेंस ऑफ इन्फेक्शन हो जाती है, लाइक इन यस। सम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स। कोई भी को इन्फेक्शन साथ चल रहा है या उसमें कोई भी और मेडिकल डिसऑर्डर है, तो ऐसी सूरत में दोबारा से हो सकता है। ठीक है, यस मैम। तो अब सपोज अब इम्यूनोग्लोबुलिन हमने दिया, लेकिन 4-5 दिन के बाद, इम्यूनोग्लोबुलिन देने के बावजूद 4-5 दिन के बाद अभी हमने एंटीवायरल शुरू नहीं की, मे बी आप 3-4 डेज ही कह लो, कि उसको रैश डेवलप हो जाता है। अब हमारी लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी? मैम देन वी विल स्टार्ट acyclovir with a high dose हम्म 800 800 हम्म milligram uh, हम्म 4 times a day for हम्म हम्म for फॉर seven मिनिमम फॉर 7 डेज। ठीक है, yes sir, for 7 days, yes. हाँ। और इसके अलावा इसके साथ ऑल्टरनेट, व्हाट आर द ऑल्टरनेट ऑप्शंस? If patient is allergic to मैम acyclovir. ए साइक्लोवर की ही दूसरी प्रिपरेशंस क्या हैं जो इनकी, आईवी फॉर्म में देंगे ना मैडम? वेलासाइक्लोवर, ये ओरल वेलासाइड। फॉर्म में है। देखो, जो हमने IV देना है ना, IV की कुछ अपनी इंडिकेशंस होती हैं। IV, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस? जब हमने इम्यूनोग्लोबुलिन पहले उसको दे दी, फिर भी उसको रैश डेवलप हो गया, अब तो वो इन्फेक्शन डेवलप हो ही गया है। इम्यूनोग्लोबुलिन इस वक्त दोबारा रिपीट करने का वो इतनी जल्दी रिपीट भी नहीं होता, कम से कम 3 हफ्ते बाद ही हम कर सकते हैं। तो इसमें हमने इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं देनी, या सपोज हमारे पास पेशेंट इनिशियली आता है रैश के साथ ही, तो भी इम्यूनोग्लोबुलिन का कोई रोल नहीं होता, इसका सिर्फ प्रोफाइलैक्सिस में होता है। लेकिन अब टाइम हैज कम जबकि हम इसको अब सीधा सीधा एंटीवायरल के साथ ही करेंगे, बिकॉज दैट वायरस हैज कॉज्ड इन्फेक्शन। अब उस वायरस को हॉल्ट डाउन करने की बहुत जरूरत है। क्यों? Ma'am, it can cause both fetal complications and maternal complications. The ज्यादा कौन सी होती हैं कॉम्प्लिकेशंस? अब ये 34 वीक्स पे उसको हुआ है, फीटल कॉम्प्लिकेशन क्या होंगी और मैटरनल में ज्यादा क्या मसला हो सकता है इस मैं जेस्टेशन पे? यस मैम, इस gestation पे मैम निमोनाइटिस हो सकता है, हम्म एनकेफेलाइटिस हो सकता है, हम्म एंड हेपेटाइटिस हो सकता है। हेपेटाइटिस हो सकता है। यस मैम। ठीक है, और और मैम यस इसमें मैम और इसमें इसमें कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें ये जरूरत होगी कि मरीज को एडमिट करें और IV साइक्लोवर पे डालें। जी मैम। ठीक है, ठीक है। यस इसमें मैम। वो दैट डिपेंड्स, दैट इज बेसिकली इंडिविजुअलाइज्ड, कि हमने किस पेशेंट को एडमिट करना है और किस पेशेंट को OPD बेसिस पे, अगर फर्ज किया उसका ओकेजनल रैश है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, हेमरेजिक रैश नहीं है या एक्सटेंसिव रैश नहीं है, तो प्रोबेबली द सेवेरिटी ऑफ सिचुएशन इज नॉट दैट मच।
तो Yes, ma'am. उसको हम ओपीडी बेसिस पे मैनेज कर सकते हैं। लेकिन सपोज उसकी रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज बहुत ज्यादा हैं, आई लीजन्स हो भी सकती हैं उसमें, और Yes, इसके ma'am. अलावा उसमें कोई थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, और या इसमें फीवर, बहुत हाई ग्रेड फीवर हो, बहुत पेन ज्यादा हो, मैकुलोपेपुलर रैश एक्सटेंसिव हो, हेमरेजिक रैश हो, तो फिर Yes, ma'am. इसमें जरूरत है, या फिर लिवर इन्वॉल्वमेंट, तो फिर इसमें जरूरत है कि हम मरीज को दाखिल करें उसको, और हमेशा इन आइसोलेशन होता है। और इसके Yes, अलावा ma'am. फिर इसमें उसकी सारी जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो भी, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत हैं, उसमें प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज, एंड मोर इम्पॉर्टेंट इज एंटीवायरल थेरेपी, जो कि फिर हम इंजेक्टेबल फॉर्म में देते हैं, आईवी साइक्लोवर देते हैं, Yes. along with all other supportive therapy जो हमने देनी होती है वो हम करते हैं। So these are the maternal risk. Yes, ma'am. What are the fetal risk at this gestation? Ma'am, at this gestation, the fetal risks are 34 weeks. hypoplasia. Yes, ma'am. Hypoplasia of the limbs, eye वो problems, eye तो defects, एक IUGR. मिनट, एक मिनट बेटा, एक मिनट। Yes, अब ma'am. हाइपोप्लेजिया लिम्स तो बन चुके होते हैं, जो बन चुके होते हैं, इसीलिए मैंने स्पेशली पूछा है कि ये इस वक्त 34 वीक्स पे है। Yes, ma'am. हाइपोप्लेजिया होता है फीटल वेरिसेला सिंड्रोम में अगर ये खास तौर पे इन्फेक्शन हो 28 वीक से पहले पहले। Okay. अब 34 वीक्स पे, जो कि अब ऑलमोस्ट क्लोज टू टर्म चलती ही जा रही है, तो Yes, ma'am. यहाँ पे इसके आईयूजीआर होने के चांसेस ज्यादा हैं, फीटल डिस्ट्रेस के चांसेस ज्यादा हैं, इवन इन स्वेयर केसेस आईयूडी के भी चांसेस हैं। And ये yes, जेस्टेशन वाइज फीटल इफेक्ट्स होंगे। yes, ma'am. ठीक अब है. फर्ज किया ये क्योंकि जब भी हाई ग्रेड फीवर हो तो वो दैट एक्ट एज द ट्रिगर फॉर ऑनसेट ऑफ प्री टर्म लेबर। Preterm. Yes, ma'am. अब ये 34 वीक्स पे, Yes, ma'am. सपोज शी गोज इनटू लेबर कोई हफ्ते बाद, Yes, ma'am. उसको पेन स्टार्ट हो जाती है, फिर Ma'am, क्या रिस्क होंगे, फिर एडिशनल रिस्क क्या होंगे? ma'am, prematurity. हम्म, प्री मेच्योरिटी का तो है ही है ना वो, क्योंकि 35 वीक्स पे अब ये डिलीवर होने Yes, जा ma'am. रहे हैं। Yes, ma'am. Ma'am, congenital neonatal. हाँ, Uh, इसमें नियोनेटल उसमें मैटरनल रिस्क transmission. कोई हो सकते हैं क्या उस प्री टर्म, मतलब ये जो डिलीवरी है Yes, 35 वीक्स पे अब जो होगी, जो प्री टर्म लेबर में चली गई 35 वीक्स पे, इसमें मैटरनल रिस्क क्या होंगे और फीटल रिस्क क्या होंगे? मैडम मैटरनल रिस्क तो यही है ना कि मैटरनल हेमरेज हो सकता है, क्यों? कोगुलोपैथी हो सकती है, क्यों? मैडम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, और और लिवर की इन्वॉल्वमेंट की वजह से। हेपेटाइटिस, हाँ यही बोलने लगी ठीक थी। है, तो ये दो और चीजें। मैडम विद इन 7 डेज ऑफ इन्फेक्शन अगर होता है तो हम फिर डिले हम्म, करते हैं ना डिलीवरी को। डिले करते हो डिलीवरी. ओके। अब इसमें ये है कि ये इसमें फीटल रिस्क ये होगा कि जित उसमें अभी अब इसको इस वक्त हुआ 34 वीक्स पे हो गया इन्फेक्शन, 35 वीक्स पे वो डिलीवर हो रही है, तो अभी एंटीबॉडीज ट्रांसमिशन टू द फीटस अभी स्टार्ट नहीं हुई, और इट कैन बी इन द इनिशियल फेज ऑफ इन यूट्रो ट्रांसमिशन ऑफ एंटीबॉडीज, इसलिए बच्चा प्रोटेक्टेड नहीं होता। मैटरनल रिस्क को हमने डिस्कस कर लिए कि पीपीएच है, वो सारी लिवर इन्वॉल्वमेंट एंड एवरीथिंग, वो सारा कुछ है। और इसके अलावा जो इन यूट्रो ट्रांसमिशन ऑफ द एंटीबॉडीज एंड ऑफ द वायरस, ये सारी की सारी चीजें बढ़ जाएंगी उसमें, खास तौर पे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी। लेकिन इसमें हम सेक्शन नहीं करते एज कंट्रास्ट टू द हर्पीज वायरस इन्फेक्शन, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस इन्फेक्शन, जिसमें कि हम ये करते थे। इसमें इन यूट्रो ट्रांसमिशन ऑफ वायरस जो है वो उसमें मोड ऑफ डिलीवरी से इफेक्ट नहीं होती, रादर इट विल बी स्प्रेड बाय द म्यूको, जो वो सारी म्यूकस मेम्ब्रेन सिक्रीशन, ये सब की सब है उसकी वजह से। और एमनियोटिक फ्लूइड में ये ट्रांसमिट होता है वायरस, विच कैन बी ट्रांसमिटेड टू द बेबी। तो जो नियोनेटल ट्रांसमिशन ऑफ वायरस है वो उसमें काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, तो नियोनेटल इन्फेक्शन होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, एंड दैट इज व्हाई इन दीज केसेस द नियोनेटल इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर इंडिकेटेड। ऐसे केसेस में अगर फिर भी बच्चे को रैश हो जाए तो उसमें फिर हम एडमिट करके आईवी एसाइक्लोवर पे डालते हैं बच्चों को भी, एंटीवायरल थेरेपी पे भी, ताकि उसमें ये मसला ना हो। ठीक है।
चलें जी। अब इसमें अब ये तो हो गया। अब इसमें फर्ज किया ये अपने ये ठीक हो जाती है, पेशेंट ठीक हो गई, अब ये 37 वीक्स पे पहुंच गई। अब हमने इसको व्हाट शुड बी द मोड ऑफ डिलीवरी एंड द टाइम ऑफ डिलीवरी। एक मिनट बेटा, जरा एक मिनट। जी। अब इसमें इसका ठीक हो गया सारा कुछ, इसमें कुछ मसला नहीं हुआ। अब हम इसको कब और कैसे डिलीवर करेंगे? मैडम प्री स्पॉन्टेनियस बेटा तो लेबर हो का गया। वेट करेंगे? मैम स्पॉन्टेनियस डिलीवरी का मैम वेट करेंगे इफ इसका देयर इज जवाब ये होना चाहिए कि हम बच्चे को मॉनिटर करेंगे। अगर बच्चे में कोई मसला नहीं हुआ, जो हमने अभी डिस्कस किया है कि उसमें IUGR के चांसेस हो सकते हैं, अगर सब चीज़ें ठीक चल रही हैं तो हम फिर स्पॉन्टेनियस ऑनसेट ऑफ लेबर का वेट कर सकते हैं। और प्रोवाइडेड के कोई रिकरेंस, इसमें रिकरेंस ऑफ इन्फेक्शन नहीं हुआ उस सारे अरसे में जो कि चल रहा है, ठीक है। और उसमें हमने डिजीज तो ठीक होगी, लेकिन डिजीज ठीक होने के बाद भी तो रिकरेंस हो सकती है। तो इसमें अगर कोई फीटल मैटरनल कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो हम उसमें स्पॉन्टेनियस ऑनसेट ऑफ लेबर का वेट करेंगे। लेकिन अगर उसमें कोई फीटल कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, IUGR है, ओलिगोहेड्रामनियोस है, तो उसमें फिर हमें पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा। और मोड ऑफ डिलीवरी तो वही है एज पर ऑब्स्टेट्रिक इंडिकेशंस, बिकॉज द मोड ऑफ डिलीवरी विल नॉट बी अफेक्टेड बाय दिस इन्फेक्शन, ठीक है। What about in the postpartum period? Neonatal care and the maternal care once the baby has been born. यही पेशेंट जो 34 वीक्स पे इन्फेक्ट हुई। मैडम डिपेंड करता है पोस्टपार्टम केयर। पोस्टपार्टम एक तो हाइजीन होनी चाहिए, दूसरा ये हम्म। कि अगर उसको उस वक्त एक्टिव इन्फेक्शन होता है और उसके ये स्पेसिफिक हाइजीन से आपकी मुराद क्या है? हाइजीन तो हम एक कॉमन वर्ड है ना, जो कि तकरीबन सारी मेरा ख्याल है पोस्टपार्टम पेशेंट्स पे तो अप्लाई होती है। But specific hygienic care in the patients who had chicken pox infection during pregnancy, उसका मतलब क्या है? आप मरीज को क्या समझाओगे? ये मैडम हैंड हाइजीन का बताएंगे, फेस मास्क का बताएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का बताएंगे, और उसे यही कहेंगे कि हम्म। ओल्ड पीपल हो गए या प्रेग्नेंट लेडीज हो क्योंकि गई या इवन बच्चे हो गए रेस्पिरेटरी उनसे। हाइजीन मैटर करती है इसमें। रेस्पिरेटरी, क्योंकि जो जो इन्फेक्शन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलते हैं उनमें रेस्पिरेटरी हाइजीन होती है। कैसे खांसी कैसे करनी है, उसमें जो है वो मास्क का पहनना, कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए, ये सब चीजें हैं। पेशेंट को क्या आप एजुकेशन और क्या एजुकेट करोगे? हाइजीन मैडम होगी। और ये भी कि अगर उसको इन्फेक्शन हो गया लेट्स सपोज दोबारा से हम्म। पोस्टपार्टम पीरियड में, तो फिर अगर निपल्स के अराउंड अगर उसको हो गए तो वो फिर वो हम्म। ब्रेस्ट मिल्क भी नहीं पिला सकती, एक्सप्रेस करेगी। अब पेशेंट को हमने एंटीवायरल भी दिया था, हमने मैम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी दिए थे। और अब वो 3 हफ्ते बाद सपोज वो 37 वीक्स पे डिलीवर होगी खुद से। तो अब हम उसको ब्रेस्ट फीडिंग का पेशेंट पूछती है कि क्या ये अगर मतलब ये है इस तरह से ये सारा कुछ हुआ तो क्या मैं बच्चे को फीड करा सकती हूँ? तो कराएगी कि नहीं कराएगी? मैडम कराएगी, करवा सकती है, बिल्कुल। करवा सकती है। इवन विद द अगर अभी लीजन्स, एक्टिव नहीं इवन है विद द इन्फेक्शन, लीजन्स, हाँ, हाँ इवन विद द लीजन्स भी अगर ब्रेस्ट पे करवा। लीजन्स नहीं है तो ठीक है। उसमें इवन अगर आप इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीवायरल भी देते हो, सारा कुछ देते हो, तो उसका ना तो इन यूट्रो कोई ऐसा इफेक्ट है, ना ही पोस्टपार्टम में ब्रेस्ट फीडिंग पे कोई इफेक्ट है। बट शुड यू नाउ, अब शुड यू वैक्सीनेट द पेशेंट? क्योंकि यस मैडम, आपने पोस्टपार्टम में इम्यूनोग्लोबुलिन दिए, वैक्सीनेशन करेंगे। वक्ती तौर पे आपने उसको इम्यूनोग्लोबुलिन दिए जो जाहिर है टेम्परेरी तौर पे इफेक्ट करते हैं, और उसके बाद एंटीवायरल भी आपने दे दिए, तो क्या आप उसको वैक्सीनेट करोगे? यस मैडम, पोस्टपार्टम में वैक्सीनेशन करनी है, यही बताने लगी थी पहले मैं। हाँ हाँ, बताओ। मैम यही कि जी। पोस्टपार्टम में उसको जिस टाइम हम इम्यूनोग्लोबुलिन उसको दे रहे थे ना एंटीनेटल पीरियड में, उसी हम्म। टाइम हमने पेशेंट को काउंसल करना है कि डिलीवरी के बाद उसकी वैक्सीनेशन होगी, और फिर हम्म। पोस्टपार्टम पीरियड में हम इसको वैक्सीनेट करेंगे। हम्म। ठीक है। तो क्या वो वैक्सीनेशन अवेलेबल है?
मैम चिकन पॉक्स की तो अवेलेबल है। ठीक है, तो क्या ये हमारे ईपीआई प्रोग्राम का हिस्सा है? मैम ये भूल गई हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से ये सेपरेट करके लगानी होती है, वो जो 2 इयर्स के बाद शायद लगानी थी कुछ। नहीं, 2 डोजेस तो होती हैं, लेकिन ये हमारे ईपीआई प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। यानी ये जो हमारा वैक्सीनेशन शेड्यूल होता है ना बच्चों का, इसमें ये उसका हिस्सा नहीं है। मीजल्स, माम्स, रुबेला ये तो वैक्सीनेशन है, लेकिन चिकन पॉक्स की वैक्सीनेशन उस तरह से उसका हिस्सा नहीं है। ये स्पोरेडिक इन्फेक्शन तो होते रहते हैं। हमारी 50% पॉपुलेशन इसको सीरो पॉजिटिव भी है, लेकिन स्टिल इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ दैट ईपीआई प्रोग्राम। लेकिन जो पीडियाट्रिशियन होते हैं वो इसके लिए स्ट्रांगली एम्फेसाइज करते हैं कि ये चीज़ चिकन पॉक्स भी इवन अगर फर्ज किया बच्चे की या किसी पेशेंट की इम्यूनिटी लो है, यू नो कि एडल्ट चिकन पॉक्स के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। इवन डेथ तक भी बात पहुंच जाती है इन सम तकरीबन 1% ऑफ पेशेंट्स में, जिसकी वजह सीवियर न्यूमोनिया होता है। और निमोनिया, हेपेटिक फेलियर भी, फिर जो मेनिंजाइटिस है वो भी। तो इसलिए बच्चों को चिकन पॉक्स की वैक्सीनेशन, दो इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ ईपीआई, ईपीआई में ये है कि वो फ्री में मिल जाती हैं, सारी पॉपुलेशन को मिलती है। तो ये जो प्राइवेटली पेशेंट ये खुद लगवा रहे होते हैं अपने बच्चों को भी। तो इस तरह से, लेकिन चूंकि पूरी 100% पॉपुलेशन कवर्ड नहीं है, तो इस वजह से इसमें डेफिनेटली इन्फेक्शन की सर्जिस आती रहती हैं। तो ऐसे पेशेंट को जिसमें ये हुआ उसको वैक्सीनेशन विच इज़ एक्टिव इम्यूनाइजेशन, तो उसमें ताकि उसकी जो लाइफ लॉन्ग एंटीबॉडीज हैं वो बन जाए, ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग इसकी होती हैं। और जो हम वैक्सीनेशन के बाद जो इसका इम्यूनिटी है वो कम से कम 20 साल तो रहती है, लेकिन कुछ केसेस में ये लाइफ लॉन्ग भी चलती है। तो इट प्रोवाइड्स अ गुड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एडल्ट चिकन पॉक्स इन्फेक्शन। तो वो हम करते हैं। क्या बच्चों बच्चों को लगानी चाहिए? ऐसे बच्चे जो हु आर बॉर्न टू द मदर्स हु हैड चिकन पॉक्स इन्फेक्शन इन प्रेगनेंसी। व्हाट अबाउट द न्यू बॉर्न्स? न्यू बॉर्न्स में अगर फर्ज किया उसको, वो ऐसे फेस में बच्चा डिलीवर हुआ जिसमें कि उसके इन्फेक्शन कैच करने के बहुत चांसेस हैं, और बच्चे में अभी एंटीबॉडीज ट्रांसमिट नहीं हुई, तो आप उसको इम्यूनोग्लोबुलिन देते हो। लेकिन जो मदर से बच्चे को अब 34 वीक्स पे हुआ है, अगर ये फर्ज किया 4 हफ्ते, 3-4 हफ्ते के बाद भी डिलीवर हुआ बच्चा, तो उसमें एंटीबॉडीज चली जाएंगी, आईजीजी चला जाएगा। लेकिन ये आईजीजी विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होता जाता है। ये तकरीबन 3 महीने पे जाके ये 80% हैं बच्चे जो इन्फेक्ट हो सकते हैं, 20% को प्रोटेक्शन होगी। और 6 महीने पे जाके तो तकरीबन एवरी चाइल्ड इज प्री डिस्पोज टू हैव इट, अगर कोई ऐसा एनवायरनमेंट हो तो। यानी वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल टू नॉन एग्जिस्टेंट हो जाती हैं एंटीबॉडीज, मैटरनल एंटीबॉडीज विच वर ट्रांसफर टू द बेबी। लेकिन बेबी अपनी इम्यूनिटी के अपने जो उसका है इम्यून सिस्टम है उसके साथ रिएक्ट कर सकता है आफ्टर वैक्सीनेशन। यानी वो अपनी एंटीबॉडीज बनाना शुरू हो जाएगा जो डेफिनेटली लाइफ लॉन्ग परसिस्ट करती हैं। तो इसलिए ये वैक्सीनेशन शेड्यूल फिर हमें उस पेशेंट के पर्टिकुलर इंडिविजुअल क्राइटेरिया के मुताबिक हमें डिसाइड करना होता है। ठीक है, चलो जी। एनीथिंग लेफ्ट इन हर्पीज वायरस, ये जो है वेरिसेला जोस्टर वायरस इन्फेक्शन, कोई और इसमें कोई ग्रे एरियाज? मैडम आपने क्या बताया कि वैक्सीन देनी है बेबी को? वैक्सीन देनी है जो ऐसा बच्चा, क्योंकि जो मदर से उसको एंटीबॉडीज मिली उसने 6 महीने में खत्म हो जाना, तो उसका अपना जो इम्यून सिस्टम है उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको वैक्सीनेशन की जरूरत होती है। ठीक है, क्योंकि अगर तो रिमोट फ्रॉम जैसे 34 वीक्स पे है और अगर ये डिलीवर हो गया 37 वीक्स पे भी, तो जरूरत हमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स की नहीं है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स हम तब देंगे जब वो विद इन 1 वीक डिलीवर हुआ और बच्चे में इम्यूनोग्लोबुलिन्स इतनी नहीं आई, ट्रांसफर नहीं हुई, ना मदर ने बनाई ना बच्चे में ट्रांसमिट हुई, तो वहां पे हम फिर बच्चे को इम्यूनोग्लोबुलिन्स खुद से दे देते हैं। लेकिन अगर फर्ज किया वो बच्चे को कोई इन्फेक्शन नहीं होता, तो लेटर ऑन वी हैव टू वैक्सीनेट द बेबी। एंटीवायरल तो उस वक्त देते हैं जब उसको रैश हो जाए।
लेकिन अगर रैश नहीं हुआ तो उसके अपने इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए हम उसको वैक्सीनेट करते हैं बच्चों को। ठीक है। और वो 2 डोजेस शेड्यूल होता है बोथ फॉर एडल्ट और न्यू बॉर्न्स भी। अगरचे वन जो इंजेक्शन है वो भी होता है, लेकिन 2 डोज शेड्यूल का ज्यादा इफेक्ट होता है। चलो जी, अब इसमें बेसिकली एक और जो थोड़ा सा फिनोमेना जो होता है वो है हर्पीज जोस्टर वायरस। हर्पीज जोस्टर वायरस के क्या पर्टिकुलर्स हैं? जी कोमल, कोमल या कोई भी और अब वॉलंटियर हमें कोई भी इंटरव्यू कर सकते हैं, आंसर कर सकता है। Are the criterias and the particulars same as with the varicella zoster virus? मैडम और सेम हाँ जी, सेम ही है उसके भी। नहीं सेम है, वायरस तो सेम है, हम्म लेकिन हाउ दीज टू डिफर फ्रॉम ईच अदर? वेरिसेला जोस्टर वायरस और हर्पीज जोस्टर, या आप कह सकते हैं वेरिसेला जोस्टर इन्फेक्शन और हर्पीज जोस्टर इन्फेक्शन। हाउ दीज टू डिफर in all these aspects which we have just discussed? मैडम ये डोरमेंट हो जाता है, ये हाँ यही पता है कि सेंसरी गैंग्लियस में डोरमेंट हो जाता है ये। हाँ, फिर ठीक ये है। और फिर और ये मैडम ये ऑप्थेल्मिक, रीएक्टिवेट होता है जब भी इम्यून सिस्टम कहीं वीक हो हाँ जाए, हाँ वीक होता है तो ये फिर तो ऑप्थेल्मिक ये इन्फेक्शन। रीएक्टिवेट हो जाता है। ठीक है। जी रीएक्टिवेट होके ये बाज दफा अगरचे इसका डेफिनेटली इसकी प्रेवलेंस भी कम है और यंग एज पे तो नहीं, लेकिन प्रेगनेंसी एक इम्यूनोसप्रेसिव स्टेट भी है। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हर्पीज जोस्टर वायरस पेशेंट को हो जाए, और इसमें स्पेसिफिक डर्मेटॉम्स आर बीइंग अफेक्टेड, क्योंकि उसने वो रूट के साथ जो नर्व रूट्स हैं उसके जरिए आना होता है, नर्व जो उनकी शीथ्स होती हैं उसके जरिए आना होता है, और ये उसी स्किन में डिस्ट्रीब्यूट होंगे इसके वेजिकल जो उस पर्टिकुलर नर्व के को इनर्वेट कर रहा है। इसलिए इसमें स्पेसिफिक डर्मेटॉम्स होती हैं, बट एज द नर्व्स आर बीइंग इन्वॉल्व सो इट्स वेरी सेंसिटिव एंड पेनफुल कंडीशन। इवन पेशेंट उसको हाथ नहीं लगा सकता, उसके ऊपर कपड़ा नहीं रख सकता, इतना ये ज्यादा न्यूरैल्जिया इतना ज्यादा होता है। तो हाउ इट शुड बी टेकन केयर ऑफ अगर ये हो जाए तो? हम्म। नॉन प्रेग्नेंट में पूछ रही है मैडम आप? नहीं, हम तो सिर्फ प्रेगनेंसी की बात करें, नॉन अच्छा प्रेग्नेंट तो फिर मेडिसिन के खाते में आ जाता है ना। जी जी। मैडम दूसरी हम्म। पेशेंट्स को इन्फेक्ट कर सकती है, इन्फेक्शियस हो सकती है। मतलब बच्चे को इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, और क्या हम इसको ट्रीट करेंगे या नहीं करेंगे? मैडम आइसोलेट तो करेंगे। ठीक है। अब यही पेशेंट जिसकी हमने बात की है, सपोज इसको अब हुआ एक्टिव इन्फेक्शन हो गया, हमने ट्रीट कर लिया, सारा कुछ कर लिया, अब सेकंड प्रेगनेंसी इसको होती है, सेकंड प्रेगनेंसी में कहीं जाके 26 हफ्ते पे वो उसको एक्यूट वेजिकल्स और वो सारा कुछ बैक पे हो गए, विच विल वी कॉल बिकॉज ऑफ इट्स टिपिकल डिस्ट्रीब्यूशन हम इसको रीएक्टिवेशन ऑफ द हर्पीज जोस्टर वायरस का नाम देंगे, विच इज कॉल्ड हर्पीज जोस्टर इन्फेक्शन। तो अब हमने, और पेशेंट इज क्वाइट इन पेन, वेजिकल्स बने हुए हैं, वो उसको टच नहीं कर सकती, बहुत पेनफुल कंडीशन है। तो उसमें उसका इम्पैक्ट ऑन द फीटस, 2-3 चीजें होंगी विच नीड टू बी कंसिडर्ड, और इसके अलावा उसका जो ट्रीटमेंट है वो, और ये सारी चीजें हैं जो हम इसमें इसमें हमें थोड़े से पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड। जी, मैडम ट्रीट तो करेंगे इसको ये साइक्लोवेयर से। ट्रीट करेंगे जरूर, लेकिन उसका मकसद क्या होगा? क्या बच्चे का प्रोफाइलैक्सिस या मदर का? मतलब मैडम दोनों प्रोफाइलैक्सिस। दोनों का, मैडम दोनों का। ओके। मदर का अब ज्यादा ये जो जरूरी हम होगा ना। देखो, हम जो एंटीवायरल देते हैं इवन जिन पेशेंट में इन्फेक्शन, प्राइमरी इन्फेक्शन भी हुआ हो, तो वो उसका इफेक्ट इन यूट्रो ट्रांसमिशन इतना इफेक्टिव नहीं होता, जैसा कि हम बाकी में सोचते हैं कि वायरस लोड को कम कर दें तो ये ट्रांसमिशन कम हो जाएगी, बट दिस इज नॉट ट्रू फॉर चिकन पॉक्स वायरस,
इसमें जो मेन मकसद होता है एडल्ट चिकन पॉक्स को भी ट्रीट करने का, वो मेन ये होता है कि हम मदर को उसकी कॉम्प्लिकेशन से बचा सकें। इसका मकसद, क्योंकि जो वायरस जाना है, अब जो बिल्कुल नियर टू डिलीवरी होता है उसमें तो हम ट्रांसमिशन रिस्क को भी कम करना एक ऑब्जेक्टिव हो जाता है, क्योंकि जब बच्चे ने बर्थ कैनाल से गुजरना है तो डेफिनेटली वो सिक्रीशंस के साथ उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। चूंकि amniotic फ्लूइड में होता है तो इवन सेक्शन पे भी ये हो जाएगा, तो इसलिए वो एक एडिशनल ऑब्जेक्टिव है। लेकिन जब हम इसकी एंटीवायरल थेरेपी या इम्यूनोग्लोबुलिन्स की बात करते हैं इन एन एडल्ट चिकन पॉक्स, तो ऑब्जेक्टिव मेनली ये होता है कि हम मैटरनल कॉम्प्लिकेशन को बचा सकें। और हर्पीज जोस्टर वायरस इन्फेक्शन में एंटीवायरल इम्यूनोग्लोबुलिन का तो कोई रोल ही नहीं, क्योंकि आईजीजी पहले से मौजूद है। लेकिन इसमें एंटीवायरल हमने इसलिए दिए हैं कि अब नए सिरे से वायरस इमर्ज हुआ, उसने ये डिजीज कर दी, तो इंटेंसिटी ऑफ पेन और उसकी जो सेवेरिटी ऑफ सिचुएशन है उसको मिनिमाइज करने के लिए, फॉर द मैटरनल कंफर्ट, तो ये उसमें हमने ये करना होगा। अब ये herpes zoster वायरस जो है, ये जो इन्फेक्शन है या उसका जो उसका वो सारा जो मैं बता रही हूँ, क्या इसका नियोनेटल या इंट्रा यूट्राइन ट्रांसमिशन पे कोई इफेक्ट होगा? मैडम लेस देन 28 वीक्स पे तो 1% है ना रिस्क, हम्म, तो फीटल वेरिसिला सिंड्रोम तो हो सकता है ना फिर भी। हो सकता है। फीटल वेरिसेला सिंड्रोम की भी एक ये वजह हो सकती है, ठीक है। जी। लेकिन नियर टू बर्थ जो है वो लेस देन, अब फर्ज किया कि 37 वीक्स पे डिलीवर हुई है, होती है, या नॉर्मल अपने रूटीन टाइम पे, तो उसमें क्या रिस्क होगा? उसमें रिस्क सिर्फ उस वक्त होगा जब ये जेनिटल herpes zoster होगा, यानी अगर जेनिटेलिया पे ये इस तरह के वो ब्लिस्टर, ये सब चीजें हो जाएंगे, उस सूरत में ये इफेक्ट करेगा। तो ऐसी सूरत में फिर हमें आईजीजी तो ज़ाहिर पहले से बनी हुई है, बच्चे में चली जाएगी, बट समटाइम्स यू नीड टू ट्रीट द पेशेंट एंड द नियोनेट एज वेल। उसमें भी हमें फिर उसको एंटीवायरल थेरेपी बच्चों को भी देना पड़ती है, क्योंकि जो पैसिव इम्यूनिटी है वो तो जा रही है बच्चे में, क्योंकि उसमें जो आईजीजी बन गए पिछले इन्फेक्शन के नतीजे में वो अभी चल रहे हैं। उस आईजीजी के बावजूद जो है वो उसको इन्फेक्शन रिसर्च हो गया बिकॉज ऑफ लो इम्यूनिटी, जो कि बच्चे में ट्रांसफर हो जाएगी क्योंकि वो मौजूद है ऑलरेडी, एंड इट कैन क्रॉस द प्लेसेंटा। लेकिन जो वायरस है वो ट्रांसमिट उस वक्त होगा बच्चे में जब वो जेनिटल एरिया पे होगा, ठीक है। और इफ और बहुत कम रेशो ऐसी होती है, जैसे लेस देन 1% है, फीटल वेरिसेला सिंड्रोम हो सकता है कि उसमें ये होगा इफ लेस देन 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। उसके बाद उसने फीटल वेरिसेला नहीं करना, नियोनेटल करना है अगर वो जेनिटल एरिया पे होगा, तो अदरवाइज कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। चलो जी, मेरा ख्याल है हमने ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी हैव कवर्ड। अगर एनी क्वेश्चन लेफ्ट तो हम उसको देख सकते हैं, अदरवाइज वी विल स्टॉप द क्लास। मैडम मैंने ये पूछना था कि अगर पेशेंट विद इन 24 आवर्स में आती है, एक्टिव लीजन के साथ आती है और लेबर में ही चली जाती है उसी 24 आवर्स में, तो हमने आईवी एसाइक्लोविर देनी होती है या इम्यूनोग्लोबुलिन उस टाइम देनी होती है, मतलब अगर लेबर में देखो, ही पेशेंट आ जाते? हाँ देखो, इन जो अगर तो फर्ज किया वो इन्फेक्टेड है, रैश बन गया सारा कुछ, तो पेशेंट इज इन्फेक्टेड, पेशेंट इन्फेक्टेड है, आईजीजी का कोई रोल नहीं है, यानी इम्यूनोग्लोबुलिन्स ने अब कुछ नहीं करना, वायरस ने अपना काम दिखा दिया। अब जो ट्रीटमेंट है वो आपकी आईवी एसाइक्लोविर होगी। लेकिन कीपिंग इन माइंड, अब आप फर्ज किया ये लेबर को स्टॉप नहीं कर सकते, ऑलरेडी शी इज इन एडवांस्ड लेबर आफ्टर गेटिंग द रैश, आफ्टर विद इन 24 आवर्स ऑफ गेटिंग द रैश, तो आप आईवी एसाइक्लोविर दोगे, और उसके साथ साथ आपने बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल अदर कॉम्प्लिकेशन। ये फिर एक जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट होता है वहाँ पे डिलीवरी एंड आफ्टर केयर होती है, और उसमें आपने जो, और उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी तो चल ही रही होती है, इवन राइट फ्रॉम द बिगनिंग ये आपने इन्फेक्शन एक्सपर्ट्स को ऑन बोर्ड लेना है। लेकिन इसमें फिर जो क्रिटिकल केयर वाले हैं वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे, और डिपेंड करता है कि उस वक्त, क्योंकि ऐसी स्टेज पे जब वो लेबर में भी है, तो ये वाली चीज जो है ये इसको ज्यादा, सेवेरिटी ऑफ सिचुएशन को ज्यादा एक ट्रिगर बन जाती है।
तो हेपेटाइटिस के चांसेस, DIC के चांसेस, बी प्रिपेयर्ड फॉर द PPH, और उसमें सारी जो उसकी करेक्टिव थेरेपी है वो सब चीज़ें, ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, ये सब यू हैव टू कीप इट रेडी। वो सारे कोएगुलेशन फैक्टर जो डिपेंड करते हैं ऑन द जो से बीइंग सिंथेसाइज इन द लिवर, वो सारी की सारी रिप्लेसमेंट्स आपको करने की जरूरत पड़ सकती है, एंड द लिवर सपोर्टिव थेरेपी। तो ये फिर एक क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट वाली चीज हो जाएगी। एंड इम्यूनोग्लोबुलिन्स टू बी गिवन टू द न्यू बॉर्न एज सुन एज पॉसिबल। और उसके बाद फिर जो है वो आप एंटीवायरल पे बच्चे को डाल सकते हो। अब बच्चे में तो उस तरह से एंटीबॉडीज बनने का और वो सब चीजें नहीं है, लेकिन आप उसको विद इन 24 आवर्स टू 48 आवर्स आप उसको एंटीवायरल थेरेपी शुरू कर सकते हो इम्यूनोग्लोबुलिन देने के बाद। उसके साथ साथ भी आप दे सकते हैं ताकि वायरल लोड कम हो। इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर मोर इफेक्टिव, ठीक है, और उसके बॉडी वेट के हिसाब से ये सारी डोजेस कैलकुलेट की जाती हैं। तो उसमें जो नियोनेटल एक्सपर्ट्स हैं, फिर जो NICU की वो है सारी जो अवेलेबिलिटी एंड द प्रेपरेशन, वो सारी की सारी चीज़ें आपने जहन में रखनी हैं। और ये हमेशा याद रखें कि ऐसे पेशेंट्स में फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का भी रिस्क मिनिमाइज करने के लिए आपने सारे प्रोटेक्टिव मेजर्स करने होते हैं, ठीक है। मैडम एक क्वेश्चन है मेरा, ये जो वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं ये तो पाकिस्तान में होती ही नहीं है, तो हम वो जो जनरल इम्यूनोग्लोबुलिन्स है वही देते हैं? देखो, इसमें देने का फायदा तभी होता है जब आप वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन्स दें। अदरवाइज वी हैव टू डिपेंड ऑन द एंटीवायरल्स। ये ऐसा होता है कि हम इम्यूनोग्लोबुलिन तलाश करते रहते हैं, ज़ाहिर बात दफ़ा ऐसे केसेस होते हैं, लेकिन वो नहीं मिलते हैं, देन वी हैव टू डिपेंड अपॉन एंटीवायरल। अब एंटीवायरल उस केस में जबकि आपने इम्यूनोग्लोबुलिन्स नहीं दी, उसमें फिर आप सिवियरिटी ऑफ सिचुएशन के हिसाब से देखें कि क्या हम इसमें कुछ टाइम वेट कर सकते हैं, क्योंकि IgM ने बनना है विद इन फर्स्ट वीक। IgG भी बनना शुरू होता है साइड बाय साइड ही, लेकिन वो एक अप्रिशिएबल अमाउंट में बनता है आफ्टर फर्स्ट वीक। तो ऐसी सूरत में 1 हफ्ते का टाइम दिया जाता है। लेकिन अगर सिवियरिटी ऑफ सिचुएशन ऐसी है, कॉन्टैक्ट बहुत ज्यादा है, बहुत देर के लिए है, और बहुत इन्फेक्टिव स्टेज में है, तो फिर आपको एंटीवायरल पहले देनी पड़ेगी, कीपिंग इन माइंड कि बच्चे को कोई इम्यूनिटी ट्रांसफर नहीं हो रही, क्योंकि मदर को भी टाइम मिला ही नहीं कि वो उस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना सके, जो वाहिद ऑब्जेक्टिव है इसमें देने का। मैडम प्रैक्टिकली हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स पे रिलाई नहीं कर रहे होते, हम एंटीवायरल से ही हेल्प सीख करते हैं सारी। हाँ, ज्यादातर यही एक्चुअली यू हैव टू टॉक अबाउट द क्लासिकल थिंग्स, यानी जो एक स्टैंडर्ड उसके मुताबिक होती हैं, साइंटिफिक एविडेंस के मुताबिक। But based on the particular situations and the facilities availability, then you can modify it accordingly, but at the compromise of some things. ठीक है, ये तो होता है ना, हम एक्चुअली इम्यूनोग्लोबुलिन्स नहीं दे रहे होते इवन फॉर द प्रोफाइलैक्सिस भी। तो ऐसी सूरत में फिर हमें रिलाई करना पड़ता है ऑन द एंटीवायरल्स इफ वी कैन नॉट गिव अनफ टाइम कि उसको हम जो है वो एंटीबॉडीज बनाने के लिए टाइम दे सकें। अदरवाइज अगर फर्ज किया पेशेंट बिल्कुल एसिम्टोमेटिक है, और इफ ये है कि इसमें द पेशेंट हर सेल्फ इज नॉट श्योर ऑफ कि पहले कभी उसको इन्फेक्शन हुआ या ना हुआ, या कोई वैक्सीनेशन हुई या ना हुई, एंड शी इज नॉट श्योर ऑफ द डिटेल्स ऑफ कॉन्टैक्ट, तो वहां पे हम थोड़ा इंतजार करके देख सकते हैं। लेकिन जहां पे हर चीज कंफर्म्ड हो, वहां पे फिर एंटीवायरल हमें शुरू में ही शुरू करनी पड़ती है विद इन मैडम 40। जैसे हर्पीस सिम्प्लेक्स में मैडम हम लीजिए से स्वैब लेके भेजते हैं, तो मैडम इसके अंदर जो है हम कैसे वेरीफाई करते हैं जैसे इसके लीजन्स को कि बेसिकली ये। जो सिरोलॉजी है वो तो ज्यादातर हम करते हैं ब्लड के साथ ही, क्योंकि ये जी इम्यूनोग्लोबुलिन सारे ब्लड के अंदर होते हैं। जी जी। अलबत्ता जो सिक्रीशंस होती हैं उसमें हम PCR टेस्ट करते हैं। जो वायरस को हमने डिटेक्ट करना है, एंटीजन को डिटेक्ट करना है, वो तो सिक्रीशंस में होगा। इवन मैडम में भी सिक्रीशंस कौन। जाहिर है वो होता है। PCR तो ब्लड में भी हम करते हैं, सिक्रीशन से भी करते हैं, टिश्यू कल्चर इसमें होता है जिसके साथ हम कर सकते हैं, एलाइजा टेस्टिंग होती है। ये सारी चीजें हैं जिनसे उसको हम
वेरीफाई कर सकते हैं, बट समटाइम्स दीज एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड एज अ क्रॉस रिएक्शन टू द herpes वायरस ऑल्सो। लेकिन इनकी जो फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव के चांसेस हैं वो कम होते हैं। बट द कंफर्मेटरी टेस्ट इज ऑलवेज द पीसीआर। सिरोलॉजी की टेस्टिंग जाहिर है पीसीआर से तो नहीं होगी, वो तो होती ही, यानी इम्यून स्टेटस को जो हमने चेक डिफाइन करना करना है, दैट इज बेस्ड ऑन द इम्यूनोग्लोबुलिन्स इन द फॉर्म ऑफ आईजीजी, नहीं जिसमें मैडम, इसमें भी लीजन से ही लेंगे वो स्वैब भी, क्या करेंगे? लीजन से ही लेंगे, लीजन से ही मैं कह रही हाँ, हूँ लेंगे। लेकिन वो वायरस के, वही मैं कह रही हूँ ना, सिक्रीशन या जो ब्लिस्टर्स या वेसिकल्स जो बने होते हैं वहां से। अच्छा ठीक ठीक, है, ठीक है। चलें जी, अब हम क्लास फिर बंद करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम भी हम इसी सीरीज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो थैंक अब यू तक मैडम। हमारे काफी इन्फेक्शन हो गए, लेकिन अभी फ्यू आर लेफ्ट, जिसको हम वन बाय वन कवर कर लेंगे। ओके? ठीक है मैम। मैम एक रिक्वेस्ट करनी थी आपके लिए, हफ्ते में 2 दिन क्लासेस लेना पॉसिबल नहीं हो सकता? क्योंकि जरा ये मुझ क्लास लेते हैं तो हमारा माइंड खुल जाता है, और टॉपिक हमने पढ़ा होता है लेकिन उस तरह समझ हाँ, नहीं आती। क्लास लेने के बाद ही समझ ये आनी शुरू हो मुश्किल हो जाती। जाता है, बिकॉज आई एम ऑल्सो बिजी। और जी जी मैम। फिर इस तरह जैसे मेरा सैटरडे ऑफ होता है तो आई कैन वेल मैनेज इट। तो लेकिन ये है कि बाकी दिनों पे तो ज़ाहिर है जॉब एरिया पे मुश्किल होता है ना इस तरह से करना। और ठीक है मैम, जाहिर है ठीक है। मैं यहाँ पे क्लास लेती हूँ बिकॉज एवरी फैसिलिटी इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द आईटी डिपार्टमेंट, और सब चीज़ें आप लोगों के साथ फिर राब्ता अनइंटरप्टेड चलता रहता है। ठीक है ठीक मैम। ठीक है मैम, है, थैंक यू सो मच ओके, मैम। ओके नाफिस, थैंक यू मैडम। ओके।